ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आप सारों को आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बिल्कुल? Yes. A1, sir. थैंक यू। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट टाइम जहाँ पे लेक्चर को लीव किया था, मैं एक बार इसकी आप स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताना है। आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड सारों को? Yes, sir. ओके, जब मैं लास्ट टाइम जो जहाँ पे लेक्चर लीव किया था, ओके, सो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट द mass spring system, which is as we are talking earlier, there are three basic vibration systems. The first is a mass spring system, the second is a pendulum system, and third is a torsional vibration system. So we are studying the first system, that is mass spring system, and we have reached up till a point where we have find out the governing equation of the system, that is x double dot plus omega n square x equals to 0. So we are talking about this equation. This is the equation that we have reached to this point. In today's lecture, we are continuing with the same equation, but now we have to find the solution of this equation. So I'm just write again here. So x double dot plus omega n square x equals to 0. And as we know that omega n is nothing but, in the last lecture, k by m. Now if you look at the nature of this equation, this is the second order linear homogeneous ordinary differential equation. And just for the sake of revision, the homogeneous means the right hand side is equals to 0. So that is the homogeneous equation. ठीक है? और लीनियर जैसे मैंने को पहले भी बताया था, लीनियर means the power of x and x double dot is raised to 1. If there is power other than 1, then this equation becomes non-linear and definitely difficult to solve. Okay, so for solving the ODE, you know from your course of ordinary differential equation, maybe you have studied in the first year, but I just take of revision. We assume a solution. So we assume that the x of t, which is the solution of, so let's say call it equation 1, so is the sorry. So let's consider that x of t is equals to a times e s t. Okay, is the solution of equation 1. Okay. Why we have choose the solution? Because as you know from ODE, you can choose a solution of a form that is some constant, which is a, times some e power s. What is s? S is the root of the equation. S is the root of the equation. And because we are talking about vibrations, so instead of x we write here t. So it's a time, the independent variable is time. If you remember from your ODE course, you have to write x here, maybe y of x or something like that, because but in vibrations the independent variable is time. So we always write a solution with an independent variable of time. So x of t is nothing but a e power st. Again, s is the root of the equation. Now if I have to put the solution, I have to put this solution in the equation 1. So then first we have to take x dot double dot. For x double dot, we have to first find x dot. And what is x dot? As you can all easily find, that is nothing but a s e s t. It's a simple derivative, a s e s t. And what is the double derivative? It's nothing but a s square e s t.
So this is the double derivative. If you put these values of x and x double dot in equation 1, what you have is what is x double dot? It's nothing but as square est plus omega n square a est is equals to 0. Clear? And just highlight here. So this is the value of x double dot, and this is the value of x. So you can now easily compare this equation with this equation. So I put the values of x double dot and x in this equation. Okay, if you have any question, you can ask by putting your mic unmute. आप उससे पूछ लें, मुझे नजर नहीं आ रहा, आप अगर कोई मैसेज करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, मुझे आपके मैसेज नजर नहीं आएंगे, तो अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आप काइंडली माइक ऑफ करके पूछ सकते हैं. Okay, if I take AEST common, so AEST and AEST common in both terms, what you get is s square plus omega n square is equals to 0. I hope you understood. सर एक क्वेश्चन पूछना था. जी पूछे. सर जो ये s है ये वेरिएबल है ना? ये रूट ऑफ द इक्वेशन है. ये वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट नंबर होता है जो कि रूट होता है इक्वेशन का. ठीक है, रूट का मतलब जिस तरह आपको याद हो, आप निकालते थे, एक आप ज़हन में हो, आप निकालते थे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. तो ये x क्या होता था? ये रूट होता था, या इसको x आप जो भी कह लें, ये रूट ऑफ द इक्वेशन है. तो बेसिकली ये वेरिएबल नहीं है, ये एक कोई फिक्स नंबर होगा. सर लेकिन फिर देखें जब हमने इसे डेरिवेट की है तो फिर ये जो s है ये बाहर आ गया जी. इसका मतलब ये कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट है ना जी. ठीक है सर. एस जो है वो रूट है, और रूट हमेशा कांस्टेंट रहता है एक वो सिस्टम के लिए. ठीक है, इसलिए हमने इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया. आपका पॉइंट को वैलिड है, एस को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया, इसीलिए हमने उसको उसके बाहर निकाल दिया डेरिवेटिव के. ठीक है, क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल है और आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डेरिवेट करें, तो आपको पता है कि टाइम का डेरिवेटिव क्या होगा. यानी कि अगर आप हम बेसिकली ये करें ना, डी बाई डी टी ऑफ ई एस टी या ए ई एस टी को हम करें, ए को हमने वैसी बात निकाली जो कि ये कांस्टेंट है. जब हम डेरिवेटिव लेंगे ई एस टी का तो क्या होगा? ई एस टी इनटू डी बाई डी टी ऑफ एस टी. यस सर. एग्री करते हैं इससे? यस सर. तो ये क्या होगा? ई एस टी, और आपके पास एस जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी इज 1. सो बेसिकली मैंने वही लिखा है. ठीक है सर. तो एस को कांस्टेंट ट्रीट किया. ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. So AEST time s square plus omega n square equal to 0. Now the trivial solution, if you know, is called, इसको रवायती कहते हैं. Trivial solution is that your AEST is equals to 0, which means that now if you this equation is equal to 0. So either this is 0 or this is 0 or both equal to 0. मैं सारा कोई पॉइंट समझ आ गया होगा. अगर इसका आंसर 0 हो तो इसके तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो पहली टर्म 0 और दूसरी नॉन 0, यानी कि ये वाली 0 हो और ये वाली नॉन 0 हो. दूसरे केस में आपके पास ये वाली नॉन 0 हो लेकिन ये 0 हो जाए, और थर्ड ये है कि दोनों 0 हो. अब ट्रिवियल सोल्यूशन ये होगा, ट्रिवियल का मतलब रवायती सोल्यूशन ये होगा कि हम फर्स्ट टर्म को, लेट्स से मैं इसको फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, इसको हम 0 कंसिडर कर लें. अगर हम इसको 0 कंसिडर कर लें तो आप गौर करें कि जो हमने सोल्यूशन एज्यूम किया था वो तो वही था जो हमारी टर्म कॉमन निकाली है. अगर हम इसको 0 एज्यूम करें तो सोल्यूशन ही 0 हो जाता है, मतलब वाइब्रेशन हो ही नहीं सकती.
ये पॉइंट बड़े गौर से समझना है आपने कि अगर मैं AEST को 0 एज्यूम कर लूं, इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन पॉसिबल, क्योंकि x ऑफ t जो जिसको हम बेसिकली हम जिस इक्वेशन को हम, ये मैं इसको डैश लाइन से हाईलाइट करता हूं, जिसको हम सॉल्यूशन कह रहे हैं सिस्टम का, वाइब्रेशन सिस्टम का, अगर वही 0 है तो मतलब वाइब्रेशन तो एग्जिस्ट नहीं, वाइब्रेशन तो कहीं होगी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको कभी भी 0 एज्यूम नहीं कर सकते, वरना आपका सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। सो इसका सादा सा मतलब यह है कि अगर आप इसको 0 एज्यूम नहीं करेंगे तो आपके लिए एक ही चीज रह जाएगी, और वो रह जाएगी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मैं दोबारा पॉइंट रिपीट कर देता हूं। हमने ये किया कि हमने एक सॉल्यूशन एज्यूम किया, इस सॉल्यूशन के हमने डेरिवेटिव निकाले और मेन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको पुट कर दिया। जब हमने AEST को कॉमन निकाला, वो पास दो टर्म्स आ गई, एक AEST जो फर्स्ट टर्म है, and second term is s square plus omega n square. Trivially, it is possible that AEST must be equal to 0, so that the whole term goes to 0, the whole solution goes to 0. But the problem is, if you take AEST is equal to 0, the solution you have assumed, and that is x of t, is then goes to 0, which simply means practically that there is no vibrations. Means you are studying and you are not studying anything. But because you cannot take AEST equal to 0, then the only other way out is that you have to take s square plus omega n square equals to 0. So what we are taking now, s square plus omega n square equals to 0. Now if you take omega n square on the right hand side, this will become minus omega n square. And if you take the square root on the both sides, because we know what is s? S is the root of the equation. So what is s is nothing but plus minus iota omega n. I think so आप सारे निकाल लेंगे मेरा ख्याल है ये, अगर आप दोनों को स्क्वायर रूट लें तो get plus minus iota omega n. So what we now see that there are two roots. The first root is plus iota omega n, and the second root is minus iota omega n. So we have two roots. Okay. So if you just remember from again previous solution, that is x of t is nothing but AEST. So if we put the root in this equation, so what you get is x of t is equals to, and then now we have two constants, a1 e s1t plus a2 e s2t. So this is the general solution of the, और कौन सा सिस्टम था वो तो मैंने ड्रॉ किया था, a mass spring system with m and k. Okay, so if we put the values, x of t is equals to a1 and u raised to the power e. If you put s1 here, this become omega n t plus with plus sign plus a2 e minus iota omega n. So we have reached to this point. जहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, मैं आगे अभी इसकी इनिशियल कंडीशंस पुट करना है, इसको एक और सिंपलीफाइड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका किसी का भी? सर एक क्वेश्चन है कि सर आप ये लेक्चर अपलोड कर देंगे ना? जी जी, मैं अभी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह विद इन एन आवर। सर क्योंकि वो समझते समझते लिखना फिर मुश्किल हो जाता थोड़ा। कोई बात, मैं ये अगर हम खुद भी लिखें, आप ना लिखें, आप समझ लें, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको लेक्चर में इंशाल्लाह विद इन 1 आवर या 1.5 घंटे में मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको लेक्चर का नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो x ऑफ t, जी जी इक्वेशन एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं x की। ये जो मैंने x ऑफ t लिखा है ये वाली? यस सर, यस सर। Okay, मैं basically what we have done is we have find this is now called the root equation. मैं ख्याल आपको यहाँ तक तो समझ आ गई है कि हमने क्या किया कि हमने basically we cannot take AEST equal to 0, we cannot take AEST equal to 0, so then we have to put s square plus omega n square equal to 0. We cannot do else. ठीक है, हम कुछ और नहीं कर सकते।
So now what we have done is, next, so we have taken this equation, taken omega n square on the right hand side, we get a minus sign, and then you have to just taking square root. Taking square root on both sides. So what you get is s equals to plus minus iota omega n. And you can easily imagine if you take a square root of, if you take square root of minus 1, what you get is iota. We put the values. So as you can see, we have when you take square root, we have two values, one with the plus sign, the second with the minus sign. So now we have two roots. The first root with a plus sign, as you can see here. The second root with the minus sign, as you can see here. So definitely, because we have assumed a solution that is x of t equals to AEST. Because now we have two roots, then we have to write the equation like we split the solution into two parts because now we have two distinct roots. Yeah. Okay, sir. So one Sir, root generally- is, yes. सर जनरली हम नेगेटिव रूट्स को तो इग्नोर कर देते होते हैं डेरिवेशंस में, तो मतलब इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नेगेटिव को इग्नोर कर दें, जस्ट पॉजिटिव को ही नहीं, क्योंकि पहले आपने ये एस स्क्वायर माइनस ओमेगा एन में भी माइनस को खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लिया था ना। कहाँ पे? सर ये स्टार्टिंग में जहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लिया था, यानी कि हम नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं जब आपने A1 A2 लिया, या लाजमी है कि दोनों रूट्स के ही साथ चलें हम? नहीं, ये दोनों रूट्स लेने पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि वाइब्रेशन सिस्टम वैसे सॉल्व नहीं होता, और आप कई जगहों पे देखेंगे कि माइनस साइन जो है वो वाइब्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि माइनस साइन को इग्नोर वाइब्रेशन में नहीं किया जा सकता। आप जो पॉइंट समझ रहे हैं वो किसी हद तक मैं समझ रहा हूँ कि नॉर्मली हम इसमें से इमेजिनरी पार्ट को खत्म कर देते हैं, और वो इसलिए कि इमेजिनरी पार्ट की हमें समझ नहीं है अभी तक, ठीक है, कि उसका कोई रियलिस्टिक वैल्यू क्या होगी। तो हम जब भी सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं तो हम उसमें से, और यहाँ भी मैं यही करूंगा, वो अलग बात है कि मैं यहाँ पे तफसील में नहीं जा रहा। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं एज A1 सम साइन, या इसको ऐसे लिखें। ओके, एक सेकंड, ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। समझ गए? ओके, दिस इज सम A1 टाइम्स साइन ओमेगा एन टी प्लस A2 टाइम्स कॉस ओमेगा एन टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोवाइडेड इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा इन्वॉल्व है। आप इसको खुद जाके देखिएगा, ये काफी, ये इसमें तकरीबन हम 15 मिनट लग जाएंगे, मैं इसमें नहीं जा रहा। आपने जब ओडी का सोल्यूशन रिवाइज करें तो आप इसको काइंडली जरूर देख लीजिएगा गौर से, ठीक है? और ठीक है, मैं इधर नहीं जा रहा, लेकिन व्हाट वी हैव इज x of t is equals to A1 sin omega nt plus A2 cos omega nt। हम इसको इसमें लिख सकते हैं। और आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको ये हिंट दे दूं कि e iota theta equals to cos theta plus iota sin theta। What is this called? Euler formula, sir. Euler's formula। So Euler's formula से ही हम डिराइव करते हैं इस फॉर्म में, जो मैंने आपको ये फॉर्म लिखी है। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि हमारा यहाँ टाइम बहुत वेस्ट होगा। दूसरा, आपने ये पेपर में नहीं करना, ये तो मैं आपको डेरिवेशन, अब जो यहाँ से जो मामला आगे है ना वो इंपॉर्टेंट है, पीछे तो सिर्फ मॉडलिंग का तरीका था। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमें पता है कि द ओनली अननोन इज A1 एंड A2, ठीक है? कोई कह सकता है सर हमें तो ओमेगा एन भी नहीं पता, लेकिन जब आप सिस्टम को बिल्ड करेंगे तो यू नो व्हाट इज द स्टिफनेस एंड यू नो व्हाट इज द मास। अगर इफ यू डोंट नो अबाउट स्टिफनेस एंड मास, यू डोंट नो अबाउट योर वाइब्रेशन सिस्टम। जब आपने वाइब्रेशन सिस्टम बिल्ड किया है, आपको तब अगर स्टिफनेस और मास का पता ही नहीं है तो आपको तो वाइब्रेशन सिस्टम का ही नहीं पता। लेकिन अगर आपने ये सिस्टम बिल्ड किया है तो आपको वाइब्रेशन सिस्टम का पता है, इसलिए जो है वो आप इसको इसलिए आप जो है वो इसको मतलब ये आपके पास ओमेगा एन नोन है, ठीक है? द ओनली अननोन इन दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है? द ओनली अननोन is A1 and A2. Now, for finding A1 and A2, we required initial conditions. Okay? We required initial conditions. Now, we can assume that ये जो initial conditions वाला point है, it can be describable, it can be different, but for sake of simplicity,
I am just writing the one set of initial condition and we can discuss this later. So x of 0, which is the displacement at a time when time is 0, is some x naught. Okay? And x dot of 0, which means velocity at a time when the motion is about to start, is some v naught. Clear? If I prove later that if you put both initial condition equal to 0, you have no vibrations, and we'll see later. So if you got confused how we have taken this x naught and v naught, we will discuss in detail in the numericals. It cannot be x naught and v naught. It can be like equal to 1 or -1. It could be anything. That depends upon how your system will behave. So we not discuss this right now, that what can be the other set of initial conditions, but we just try to solve it. So if you put the x of 0, so this become a1. So I'm just putting t is equal to 0 in this equation. a1 sine of omega n 0 plus a2 cos omega n into 0. So what you get? So this x of 0 is equals to x naught, and what you get is a2, only a2. Sorry. What you get is only a2. Clear? Because you know that this term goes to 0. Okay, if you put the second initial condition, which is x dot of, so if first we have to take x dot of t, and what is the x of t? This is a sine omega nt plus b cos omega nt. So if we take derivative, the first become a omega n cos omega nt plus, sorry, a1 plus, and then we have to put a minus sign here. Okay, just write plus here, then we write a minus sign. Plus a2 omega n, and what is the derivative of? Or derivative of cos? It's minus sign omega t. Clear? So what we have done is we have just taken the time derivative or the first derivative of this equation. Okay? This equation. So now we have to, then simplifying that, we have x of t is nothing but a1 omega n cos omega nt plus a2 omega n, sorry, we have put a minus sign out, minus sine omega n t. Now we have to put the second initial condition, which is x of 0. So a1 omega n, we have to put only where t appears equal to 0, minus a2 omega n sine omega n 0. Clear? And this is equals to v naught, as we know from our initial condition. What is a1? Okay, this term goes to, cos of 0 is 1, a1 omega n. This term is equals to 1. Okay, minus, what is a2? A2 we have find out equals to x naught omega n, and this whole term is equals to 0. Into 0, we get v naught is equals to a1 omega n. So we can now see that a1, which is our second desired constant, that is equals to v naught over omega n. Now we have find out the two constant based on two initial conditions. So the first constant a1 is, as we have find out right now, is omega n, and a2 we have find out is equals to x naught.
if you put these values, in this equation, so not in this equation, sorry, not in this equation, but in this equation, the solution equation, this equation. So what you get is, x of t is equals to a1 is v naught over omega n sine of omega nt plus x naught cos omega nt. This is the final solution of mass spring system. Okay, so this is the final solution of the mass spring system. Okay, now you can easily see, if I put a1 equal to 0 or a2 equal to 0, and sorry, or not, or the whole solution x of t goes to 0. So you cannot say that the both constant can be 0. It should have some values. Yes, what you can say is that your, ये मैं बड़ा important point लिखने लगा हूँ. What you can say is that your one of the initial conditions can be 0, which simply means the first, if the one condition, if one initial condition must exist to create or to perform any vibrations. So we are talking, so I'm again repeating, x of t, which is considered as the displacement. Okay, what is x? X is the displacement. And again, if you remember from the first lecture, so I've told you the vibration can be expressed in displacement, in velocity, and in acceleration. So what we have find out is the displacement solution, which is x of t. If just in the exam you have to write the, let's say you're interested in finding the acceleration solution of the system. For example, तो कैसे करेंगे? So हमारे पास, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, x of t is v naught over omega n sine of omega nt plus x naught cos of omega. ये हमारे पास x of displacement, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये this is the displacement solution. आप इंटरेस्टेड हैं, मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द एक्सेलरेशन सॉल्यूशन. सो आपने यहां तक तो ऐसे ही करना है. सो अगर मैं इसको डेरिवेट करूं वन टाइम, तो देखिएगा जरा गौर से. डेरिवेट करने से क्या होगा, ये क्या आएगा, v नॉट ओवर ओमेगा n इंटू ओमेगा n साइन cos ओमेगा n t प्लस x नॉट ओमेगा n, सॉरी यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी. और आज जैसा देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास ये ओमेगा एन और ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू गेट इज एक्स डॉट ऑफ टी इज वी नॉट कॉस ओमेगा एन टी माइनस एक्स नॉट ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी. ये कौन सा सोल्यूशन है? दिस इज द वेलोसिटी सोल्यूशन. ये सॉल्यूशन आपको वाइब्रेशन की वेलोसिटी बताएगा. जब मैस स्प्रिंग सिस्टम आपका मैस स्प्रिंग सिस्टम ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, तो आपको ये फॉर्मूला क्या बताएगा, इस वाइब्रेशन की वेलोसिटी क्या है. और अगर आप इसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको पता है, आप इसको फिर डेरिवेट कर दें.
तो क्या होगा, डेरिवेट करें तो क्या होगा, v नॉट ओमेगा n विद अ माइनस साइन साइन ओमेगा n t माइनस x नॉट ओमेगा n स्क्वायर cos omega n t. So this is the acceleration solution. Clear? This is the acceleration solution. So this is the displacement, this is the velocity, and this is the acceleration. ठीक है? सो ये तीनों फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे कि आप, लेकिन आप याद रखिएगा आपको पहले जो है ना, हैव टू फर्स्ट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन, उसके बगैर आप डायरेक्ट वेलोसिटी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ये मुश्किल काम है, क्योंकि शायद निकाल ही नहीं सकते, मेरा ख्याल है आपको पहले डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी पड़ेगी, और फिर अगर आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की डिजायर है तो आप इस तरह इसको डेरिवेट करके निकाल सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर। अच्छी तरीके समझ आ गया कि हमने ये हमारे पास तीन सॉल्यूशंस आ गए हैं। जनरली हम डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन को ही देखते हैं आमतौर पे, मतलब ज्यादातर जो अगर डिमांड होगी वो डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन ही होगी, लेकिन चंद जगहों पे आपको ये मैं कह सकता हूँ या बुक वाला कह सकता है, कोई भी कह सकता है कि आप इसका जी मुझे एक्सेलरेशन सॉल्यूशन बताएं, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन निकालेंगे और सिंपली उसको फिर डेरिवेट कर देंगे। एक बार डेरिवेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार डेरिवेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। सर ये आज जो आपने एक लाइन लिखी है, योर वन ऑफ द इनिशियल कंडीशन कैन बी जीरो, यस सर इसका थोड़ा सा बता दें, ओके, इसका मतलब क्या होगा? मैं बता देता हूँ। ओके, इस पे जो इन्होंने पॉइंट रेज किया बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर आपकी दो इनिशियल कंडीशन अगर आप गौर करें ना, तो मैंने दो इनिशियल कंडीशन एज्यूम की है, एक ये वाली x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट, और दूसरी ये वाली, ये दो इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम की वाइब्रेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर मैं किसी एक को जीरो कर दूं, मैं वेलोसिटी को जीरो कर दूं, इसका फिजिकली क्या मतलब है, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्लाह करे यूनिवर्सिटी का हालात ठीक रहे, आप आएंगे, मैं आपको फिजिकली करके दिखाऊंगा, क्लास में डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा कि एक इनिशियल कंडीशन जीरो करने का मतलब क्या होता है। क्या वेलोसिटी को जीरो कर दें और डिस्प्लेसमेंट को रहने दें, आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें, वेलोसिटी को रहने दें, ठीक है, ये पॉसिबल है, या आप दोनों को रहने दें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी हो और वेलोसिटी भी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो। यस सर, ठीक है। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगी, जैसा कि आपने सोल्यूशन में देखा, आपकी क्या होगा, A1 भी जीरो चूंकि वेलोसिटी जीरो, A2 भी जीरो चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब A1 और A2 ही जीरो हो गया तो सोल्यूशन क्या हुआ, अनडिफाइंड, वो नॉन रिप्रेजेंट, मतलब जीरो हो गया, सिंपल। V नॉट जीरो तो पहली टर्म जीरो, X नॉट जीरो तो दूसरी। जीरो का मतलब क्या, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, सिस्टम स्टेशनरी अपनी जगह पे खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। सो Yes, इसका sir. मतलब है कि कोई सी एक कम से कम जो शर्त है वो क्या है कि कोई एक इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, कोई एक इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए। ये समझ आ गया ठीक है पॉइंट सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ऑन अ ग्राफ, मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करूं, मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन को नहीं कर रहा, वो फिर तीनों को मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूं, तो वो शायद कुछ ऐसे आए, ठीक है। अब कोई मुझे पूछे सर आपने यहां से क्यों ड्रॉ किया है, इसकी वजह है, इसकी इनिशियल कंडीशंस है, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस आपको डिफाइन करेगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहां से होगा, ये इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या इनिशियल कंडीशन होगी, अब ये कैसे स्टार्ट करेगा, ये इसको आप ना क्लास में फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी शायद आपको इस तरह समझ नहीं आएगी कि ये यहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से हमें कैसे पता लगेगा। इस पॉइंट को मैं आपको फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैथ स्प्रिंग सिस्टम से, आपको मेरा पॉइंट समझ आ जाएगा। ओके, इसमें जो अहम चीज है वो इसका है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो आपने जेहन में रखना है, वो कैसे निकलता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि आपको कैसे पता लगेगा कि सिस्टम का नेट एम्पलीट्यूड है कितना, ठीक है, सिस्टम का नेट एम्पलीट्यूड है कितना, और वो पता लगता है हमें
यूजिंग अ रिलेशन, इसको हम एक्स कहते हैं, सॉरी वैसे ए कह लें, चलें ए कह लेते हैं इसे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए, जो कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, इज द स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये आपने अपने फॉर्मूला रखना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और वो क्या होगा? सो व्हाट इज A1? A1 is nothing but V naught by omega n square. And what is A2? X naught square. ये वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला। ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, आगे जितने जाएंगे एम्पलीट्यूड सेम होंगे, आप कहीं भी मेजर कर लें। लेकिन ये कितना होगा आपको कैसे पता रहेगा? इस रिलेशन से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और अगर आप इसका एंगल निकालना चाहें, फेज एंगल, तो वो क्या होगा? उसका एक प्रूफ है, मैं प्रूफ की तरफ मेरा ख्याल है मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि उसका प्रूफ थोड़ा लंबा है। लेकिन मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि उसका जो एंगल होगा, जो एंगल मैं आपको बताऊँ, एंगल मैं किसकी बात करूँ, सॉरी, जो उसका फाई होगा, जिसको मैं एंगल कह रहा हूँ फाई, ये होगा tan इनवर्स ऑफ A2 बाय A1, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट इज A2? X नॉट, एंड व्हाट इज A1? V नॉट ओवर ओमेगा n, ठीक है। इसको आप फेज एंगल कहते हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं फेज एंगल। और फेज एंगल से सादा मतलब क्या है? अगर आप इस ग्राफ में गौर करें तो इसके अंदर एक लीड आ रही है, ये देखें, ये एक लीड है। अगर आप इसको जीरो से प्लॉट करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास बेसिकली क्या टाइम, इसे हम कहते हैं T5। T5 कहते हैं, इसे कहते हैं टाइम शिफ्ट, यानी कि कितना टाइम लीड कर रहे हैं। ये जो आप ये मैंने ये ड्रॉ किया, ये टाइम, और ये बराबर होता है नथिंग बट फाइव बाय ओमेगा n, ठीक है। और फाइव आपके पास क्या होता है? फाइव वो होता है जो आपने ये निकाला है, ये आपके पास फाइव है, ठीक है। सो क्या हुआ? आपके पास तीन चीजें आपके लिए अहम हो गई। पहला, सॉल्यूशन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सॉल्यूशन। द सेकंड इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो कि आपको पता है किससे निकलेगी? इनिशियल कंडीशन से। और थर्ड इज आपके पास क्या है? फेज एंगल। ये तीन चीजें अहम हैं हर सिस्टम में, आप ये तीन चीजें ही देखेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक सारा कुछ समझ आ गई है? Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके, दैट्स गुड। ओके, हम नेक्स्ट सिस्टम को स्टार्ट करने लगे हैं। मैं जितना हो सकेगा थोड़ा सा कर दूंगा, बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरे वैसे टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ना इस जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है इसका मॉडलिंग का, वो मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो अगर आपको उसमें समझ नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी जितना हो सकता है हम उतना कर लेते हैं 5-10 मिनट में, ठीक है। जो सेकंड सिस्टम है वो है पेंडुलम मॉडल। पेंडुलम मॉडल मैं अब इसका सोल्यूशन नहीं करूंगा। सोल्यूशन का तरीका वही है जो मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का तरीका यही है। ये देखें, जो मैंने आपको तरीका बता दिया, सोल्यूशन का तरीका यही है। जो मैं अब करने लगा हूं सिर्फ मॉडल करने लगा हूं। मैं आपको गवर्निंग इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा वहां पे कि बस अब आगे आपने उसी तरीके से सोल्यूशन करना है। सो अगर मैं एक पेंडुलम ड्रॉ करूं, सॉरी, ओके, मैं एक पेंडुलम ड्रॉ करूं, आपके पास ये m है, ये इसकी लेंथ है, और इसको ये डिस्प्लेस होता है एट अ सर्टेन पॉइंट। लेट्स से हम ये ले लेते हैं, और ये आपके पास एंगल थीटा हो, ठीक है।
तो आपको पता है कि पेंडुलम में हमारे पास जब ये आप इसको मूव करेंगे तो ये वापस आएगा, ठीक है। सो व्हाट वी हैव हियर is the okay, this angle theta, it can have theta dot which is the angular velocity, it can have theta double dot which is angular acceleration. So जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वहां जब हमारे पास एंगुलर सिस्टम होते हैं, कोई थीटा रोटेशन होती है, ये जिसका पेंडुलम के केस में हमारे पास हो रहा है, तो वी हैव थीटा विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, we have theta dot which is the angular velocity, and we have theta double dot which is angular acceleration. So we know that we have now weight is acting downward. So we have first, that is weight, which is W, which is acting downward. If you split the weight into two components, one component is along the line, second component is like this. Okay, so this angle is theta, and you know what is this component? This component is W cos theta. And what is this component? This is nothing but W sin theta. मेरे ख्याल में सारों को ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा। ये वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इसके अलोंग बनेगा, ठीक है, दैट इज W cos theta, और एक इस तरह बनेगा along towards the mean position जो कि W sin theta। आपको पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ओके, अब मैं न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन लिख रहा हूं, समेशन F इज इक्वल्स टू mx डबल डॉट या ma, जैसे मुझे पता है कि a और x डबल डॉट एक ही बात है। आपको याद हो कि न्यूटन ने इसकी रोटेशनल फॉर्म भी दी थी, या एनालॉगस भी दिया था, विच इज समेशन I नॉट, नॉट इज दिस पिवट पॉइंट, sorry, not I naught, sorry. Summation m naught or m is equals to I naught theta double dot. ये इसी फार्मूला का साइकिल ऑफ मोशन का जो आप कह रहे रोटेशनल एनालॉगस है, यानी कि ये सेम लॉ है, सिर्फ वो लीनियर के लिए, ये जो है वो लीनियर सिस्टम्स के लिए, और ये रोटेशनल सिस्टम्स के लिए, एंगुलर सिस्टम्स के लिए, ठीक, लॉ सेम ही है, वही चीज है। अब चूंकि यहाँ पे रोटेशनल सिस्टम है, और देखिए यहाँ पे थीटा डबल डॉट आ रहा है, इसलिए जो है वो हम रोटेशनल सिस्टम की बात करेंगे। ओके, ये जो आपके पास ये समेशन एम नॉट है, ये रिस्टोरिंग मोमेंट्स है, रिस्टोरिंग मोमेंट, ठीक है। सो हम लिखते हैं आई नॉट थीटा डबल डॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ओके, व्हाट इज द रिस्टोरिंग मोमेंट। आपके पास आप गौर करें तो यहाँ पे ये वाली जो फोर्स है W sin थीटा, और W बेसिकली इसके बराबर होता है, W इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg, mass times acceleration due to gravity. Okay, so restoring moment is nothing but W sin theta multiplied by the length of the pendulum. So W sin theta, which is this, times the length of the pendulum, which is the moment arm. So this is nothing but, if you want to write the restoring force, that is minus mg sin theta, which is the restoring force. This is the restoring force, multiply by, चूंकि ये मोमेंट बनाना है, multiply by the length, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग मोमेंट। इसके अलावा इसके अंदर कोई रिस्टोरिंग मोमेंट नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी का रिस्टोरिंग मोमेंट है, और डिस्टर्बेंस जो इनर्शियल फोर्स है वो आई नॉट थीटा डबल डॉट। और आई नॉट क्या है, आई नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, और ओ क्या चीज है, पिवट पॉइंट, क्लियर। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें, हम इसको वहां ले जाएं, इसको यहां पे ले जाएं, सो आई नॉट थीटा डबल डॉट प्लस mgl sin थीटा इक्वल्स टू 0। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बेसिकली काम क्या करना होता है कि हमने जो भी टर्म आए थीटा डबल डॉट या एक्स डबल डॉट के साथ, उसको हमें डिवाइड करना होता है। तो थीटा डबल डॉट प्लस mgl ओवर आई नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां तक सारा को समझ आ गया, ठीक है। यस सर। अब यस सर।
इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है, मेरे ख्याल में 2-3 मिनट में इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूं। ओके, इसमें बड़ा अहम पॉइंट है, और अहम पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी एफएससी थोड़ी सी जेन में हो तो हम एक एजम्पशन लेते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। सारों के जेन में है ये एजम्पशन? जी सर। यस सर। दैट्स वेरी गुड। यस सर। थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल ओवर आई नॉट थीटा इक्वल टू 0, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, यस सर। प्रोवाइडेड Yes, sir. कंडीशन क्या है, थीटा इज स्मॉल। यहां तक सारों को समझ आ गया? यस सर। अब एक क्वेश्चन आपसे है, आप कोई इसमें से काइंडली जरा थोड़ा सा इसको सोचिए और बताए कि ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में रखूं, ये जरा देखिएगा। ओह अच्छा, ये आगे चला गया। ओके, किसी को इसका आंसर आता है? सर जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो। 0 क्या डिग्री? नो सर, सिंपल 0 ही। रेडियन? 0 रेडियन को अप्रोच कर रहा हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको पता है मुझसे एक बंदे ने पीएचडी में एक क्वेश्चन किया था, ये वाला जो मैं आपसे कर रहा हूँ। ये अब आप इसको ये कहना हाउ स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ये बात गलत है। इसकी एक खास रेंज होती है जिसके बाद ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल ओवर आई नॉट साइन, चलो मैं साइन थीटा ही लिखता हूँ फिलहाल, और अप्रोक्सीमेशन मैं यहां पे लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन क्या है, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल ओवर आई नॉट साइन थीटा इक्वल टू 0 इफ थीटा, सॉरी, प्रोवाइडेड दैट sin theta is equals to theta, approximately equal to theta, provided that theta is small। ये मैंने आपके सामने लिख दी, वो जो हम बात कर रहे हैं पहले। अब हाउ स्मॉल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बता देता हूं। ये दिस कंडीशन sin theta is approximately equal to theta only if theta is less than 10 degrees। ये सारों को समझ आ गया? यस सर। आप जी सर। Yes, sir. कैलकुलेटर निकालें जब आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, बेशक कभी निकालें या बाद में निकालें। थीटा को 10 डिग्री को रेडियन में निकालें और साइन थीटा की वैल्यू निकालें और इसको कंपेयर करें आपस में। आपको पता लगेगा कि जब आप 10 डिग्री से कम थीटा रखें तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन अगर आप 10 डिग्री से एंगल ज्यादा लेंगे तो ये वैल्यूज बहुत अवे जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो आपसे कब कोई पूछे कि जी ये assumption कब तक लेते हैं, जब तक थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्रीज हो। इसका मतलब ये है, ओके मैं एक दो पॉइंट जाके, ओके सो थीटा डबल डॉट प्लस एम। सर ये दोबारा रिपीट कर दें, किन दो को कंपेयर करना है जो आप अभी बता रहे थे? हाँ, मैं ये रिपीट कर दें। मैं दोबारा बता देता हूँ। आप थीटा की वैल्यू लेट से 10 डिग्री लें, ठीक है ठीक सर। है, इसको आपने रेडियन में निकालना है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू भी रेडियन में आएगी। ठीक है, ठीक है आपने सर। इसको रेडियन पे निकालना है, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, या ठहरे मैं आपको भी निकाल के, मेरा कैलकुलेटर सामने पड़ा हुआ, मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आप डिग्री को रेडियन में निकालें, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये वैल्यू आती है 0.17452, और अगर आप साइन 10 डिग्री निकालें
तो वो वैल्यू क्या आएगी? 0.1735। सर वो आएगी 0.173। ठीक है। अब आप देखें तकरीबन ये 2 डेसिमल प्लेस पर ठीक है एक सर, जैसी ठीक है। है। अभी ये 10 डिग्री लिया है। अब इसको आप कम कर दीजिए, मैंने लेस देन 10 डिग्री लिखा था ना, अब हम इसको कम कर देते हैं, ये वैल्यू क्लोज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये सॉल्यूशन तब तक वैलिड है जब तक आपकी पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो? 10 डिग्री से कम कम। 10 डिग्री से कम। अब आप दिमाग में लेके आए, जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे पेंडुलम का, तो आप उसको कितना 10 डिग्री ज्यादा डिस्प्लेस करते थे, यस सर। है ना कि नहीं? यस सर। ऐसे ही है। करते थे। यस सर, ऐसे ही है। अब आप जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, किसी के जेन में पेंडुलम का? किसी के जेन में? एफएससी से थोड़ा बहुत जेन में। 2 पाई 1/2 पाई L बाय G शायद। जी बाय एल। ठीक है। अब ये हमने सिमिलर पेंडुलम का फार्मूला किया, यहाँ पे आपको कोई जी बाय एल नजर आ रहा है कहीं पे? यहाँ पे GL नजर आ रहा है सर। GL थीटा, ये जो आपने लिखा है MGL थीटा। लेकिन ये तो ये नहीं होना चाहिए, जी बाय एल नहीं होना चाहिए। ये बन जाएगा कैसे? गौर के आई नॉट क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो क्या होगा पेंडुलम के लिए? पेंडुलम के लिए क्या होगा? मैस टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ मास, ML। which is nothing but ml square. Mass times distance from mean position to the center of mass, जो कि बॉब का सेंटर ऑफ मास है। अगर आप इसको यहां पुट करें तो क्या होगा? ये देखें, m से कैंसिल, l स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या बचा आपके पास? वही बच गया ना, थीटा डबल डॉट अब मैंने वो क्या कहा था कि ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? बताया था ना आपको कि जो भी थीटा के साथ होगा वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और तो ओमेगा में क्या हुआ? ठीक है, ये सारा को समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. जी बाय एल हो गया। एक सेकंड जरा ठहरे, मैं आपको आखिरी पॉइंट बता दूं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो एफ एन हो गया ओमेगा एन ओवर 2 पाई, और या वैल्यू पुट करें तो ओमेगा एन क्या है? जी बाय एल डिवाइड बाय 2 पाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। वही फार्मूला आ गया। यस सर। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी लैब में निकालते थे तो आप ये वाला फार्मूला यूज करते थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए। है कुछ जेन में? यस सर, ये निकालते थे ना? यही लेकिन करते इस- थे, यही सर करते ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में जो कि आप खुद फाइंड करते थे, और थ्योरेटिकल कौन सा है जो हमने फार्मूला निकाला है, इसमें डिफरेंस आता था। इसकी वजह, बहुत बड़ी वजह आपको आज समझ आई है, वो क्या? कि आप इसको 10 डिग्री से ज्यादा डिस्प्लेस करते थे। समझ आया? यस सर। ये Yes, sir. फार्मूला सिर्फ उस हद तक वैलिड होता है कि अगर आप पेंडुलम को 10 डिग्री से कम डिस्प्लेस करें, उसको हिलाएं, और फिर जो आपका आंसर निकले उसको आप कंपेयर करें आपस में। सर लेकिन 10 डिग्री तो बहुत ही कम होता है, वो तो ना बहुत ही हिलाने के कम बराबर हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की हमने, वो ना हिलाने के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि जिसको आप लफ्ज यूज करते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है, वो सिंपल नहीं होता। मतलब अगर मैं इसको 10 डिग्री से ज्यादा कर दूं और ये साइन थीटा हो जाए, ये देखें, तो इसके ऊपर मुझे पूरी टेलर सीरीज लगानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये एंगल जो है वो कितना हो,
20, 40, 50, 60 डिग्री हो, सॉरी सेंटीग्रेड डिग्री हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पूरी टेलर सीरीज लगानी पड़ेगी। और ये इक्वेशन, ये जो आपको अभी दो पे सफों पे नजर आई है ना, ये कम से कम 15-20 सफों पे सॉल्व होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये सिंपल सिर्फ तब तक होता है जब आप एंगल को लेस देन 10 डिग्री कंसीडर करते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई और कंफ्यूजन हो किसी को? नो सर। ओके, सो हम यहां तक पहुंच गए। हमने पहले जो है मैस्किंग सिस्टम मॉडल कर लिया, उसका सोल्यूशन देख लिया। अब हमने पेंडुलम को मॉडल किया। अभी हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम रहता है। तो मेरी वैसे कोशिश ये है, एक आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं आज जो है वो मैं इसका जो बाकी पार्ट है, इसका एक कंपाउंड पेंडुलम का पार्ट है और एक टॉर्शनल वाइब्रेशन सिस्टम का पार्ट है, ये मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ये आज देखने, क्योंकि कल मेरे ख्याल सेक्शन बी का लेक्चर है, हमने कल न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड सा हो गया। ये आपको मॉडलिंग जो है ये आप आहिस्ता आहिस्ता भी समझ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली अप्लाई नहीं होनी। ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अगर वो आपको समझ आ गया तो वो ज्यादा उनके साथ है। चंद एक न्यूमेरिकल्स इनके साथ भी होंगे पेंडुलम सिस्टम से होता। तो मैं ना ये पूरा लेक्चर इंक्लूडिंग दिस और इसके बाद वाला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा आज ही रिकॉर्ड करके। क्लियर? आपको पूरा सर, जी पूछे सर काइंडली कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बता दें, कहीं ये तो नहीं कि उसमें हम 10 डिग्री से ग्रेटर एंगल लेंगे? मतलब जैसे आपने कहा ना कि ये सिंपल है 10 से बिलो तक की। नहीं, उसमें भी यही जम्पशन है। मैंने आपको ठीक। सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा कि अब टाइम बहुत ओवर हो गया है, हमें 20-25 मिनट और लग जाएंगे। अगर आपने कंपाउंड करना है मुझे कोई इतराज नहीं, मैं करवा देता हूँ, लेकिन आप कैन यू बियर फॉर 15 मोर मिनट्स? नहीं सर, मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि आपने ये कहा था ना 10 डिग्री से कम लेते हैं, तो नहीं कहीं नहीं, उसमें ज्यादा वो नहीं, काम बस नहीं यही होगा। पूछना। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक। आपको उसके अंदर ना, जब रिकॉर्ड करूंगा ना मैं तफसील से ठीक। एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको क्यों इसमें भी वही जम्पशन होती है, क्योंकि ये पेंडुलम ही होता है, इसमें भी वो साइन थीटा इक्वल टू थीटा वाली जम्पशन ही अप्लाई होती है। थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है उसका कॉन्सेप्ट, लेकिन वो जब वो आएगा तो मैं आपको वहां पे थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक गुड है, हो गया सर। ये मैं रिकॉर्ड कर दूंगा लेक्चर। आपने कोशिश करनी है आज ही इसको ना, कोशिश करके सारों ने आज रात तक या कल सुबह तक, आप ए सेक्शन के बाद तो टाइम है, जो बी सेक्शन वाले हैं वो कोशिश करें कि इसको ना, कल चूंकि हमारा लेक्चर है बी का 11:50 पे, हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं कल, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको ना एक बार देख लीजिएगा जरूर मॉडलिंग को। ठीक है? सर न्यूमेरिकल्स हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम के करने हैं, सारे पेंडुलम के भी करने हैं। नहीं, ज्यादातर मैथमेटिक्स सिस्टम के एक न्यूमेरिकल शायद कंपाउंड पेंडुलम से रिलेट करता है और एक आधा जो है वो टॉर्शनल वाइब्रेशन से करता है। तो मैं तफसील से बता दूंगा, और फिक्र ना करें जो बी सेक्शन वाले, क्योंकि आपके पास तो बाकियों के पास तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा उनको। जो बाकी हैं वो मैं इसलिए कह रहा था कि आप थोड़ा सा टाइम ले लें, आपको तो टाइम होगा। सिर्फ जो बी सेक्शन का G1 ग्रुप है, अगर कोई स्टूडेंट मौजूद है या वैसे मैं अनाउंस करूं, इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल में आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो परेशान इतना नहीं होना कि आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप काइंडली इसको ना एक बार देख लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह 3 बजे तक या 4 बजे तक मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। चलो, गुड हो गया सर। एनी मोर ओके क्वेश्चन? सर। नो सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपकी पेशेंस, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन अच्छी बात है आपने थोड़ी पेशेंस से सुना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।